ਹੈਲੋ एवरीवन स्किल्स ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦੈਨ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ MCQ ਵਾਈਜ਼। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ MCQ ਵਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 450 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਣਗੇ। ਦੈਨ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਦੋਗੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ 6000 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ PDF ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਐਪ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਦੈਨ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਐਪ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਉਸਦੇ ਸਟੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ 6000 ਈਅਰਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 999 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ 6000 MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ 'ਚ ਲਿਆਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, ਨੈਬ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, CGL ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, NTPC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, PPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, PSSSB ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PSPCL ਦੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, IBPS ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੈ। 10 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। ਡਨ। 10 ਡਿਜਿਟ ਦਾ, 12 ਡਿਜਿਟ ਦਾ, 14 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲੋਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 14 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। ਡਨ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ? 14 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 14 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆਈਏ ਹਰੇਕ ਪਲੋਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਲਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਲ। ਡਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ULPIN ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ULPN ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੋਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਨ। ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ULPI ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
डन ओके ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 2008 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ULPI ਨੰਬਰ ਦਾ समझ गए ये सी अपनी करंट अफेयर अगला क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना डन ज्यादा सेकंड्स नहीं दवांगा क्योंकि आपने सारे करंट अफेयर नु कवर भी करना है विच स्टेट विल बिकम दी इंडियाज फर्स्ट स्टेट जिसने ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बन चुकी है तुसी कोई दस सकदा मैनू यानी कि कहने दा भाव ऐसी पहली स्टेट जिस कोल 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स हैं टाउन्स मतलब सिटीज हैं डन ऐसी केड़ी इंडिया दी स्टेट है जिस कोल ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स है कोई दस सकता बिहार दा मणिपुर दा केरला दा तमिलनाडु दा दस सकता कोई इसका आंसर आ जाएगा अपना बिहार डन बिहार पहला ऐसा स्टेट बन गया जिस कोल ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स है की मतलब हो गया ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स यानी कि कहने का भाव कि उस स्थान ते यानी कि उस सिटीज विच प्रॉपरली सोलर एनर्जी लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है डन हुण उत्थे दे जिहड़ी टाउन्स हैं ਉਹ ਇਸ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਜਗੀਰ ਡਨ ਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਰਾਜਗੀਰ ਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਡਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਊਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਡਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਊਨਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ प्रोजैक्ट्स लियाना चाहते हैं तो सब तो पहले इन्ना टाउन्स विच इंप्लीमेंटेशन होगी इस फायदा की होएगा कि पता लग जाएगा कि किस तरह प्रोजैक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है किस तरह अपने ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की यूसेज करनी है डन नेक्स्ट क्वेश्चन डन कहते विच स्टेट हैज बीन पेयर्ड विद दी झारखंड हैज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम यानी कि जे आप गल आखीए कि आप सोच रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जी आप स्कीम लियाउंदी है उस विच आपां पेयर बना रहे हैं समझ के एक स्टेट का दूजे स्टेट नाल पेयर बना रहे हैं यानी कि इस स्कीम के आधार ते असी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टेट की जिहड़ी डाइवर्सिटी है ना एक स्टेट का जो कल्चर है उसनों आपां एक दूजे स्टेट नाल मिलाप च लियाना चाहुंदे हैं ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ झारखंड ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ झारखंड ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਗੋਆ ਡਨ ਗੋਆ ਨੂੰ झारखंड ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੇਅਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਕਿਮ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ओडिशा उस तो इलावा गोवा झारखंड उस तो इलावा बिहार त्रिपुरा ते मिजोरम डन उस तो इलावा हिमाचल प्रदेश ते केरला ये तुसी देख सकते हो बाकी डिटेल्स भी तुसी देख सकते हो डन ओके समझ गए ਅਸੀਂ मैं वही गल कर रहा ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन का की मतलब है इसका मतलब यह है कि ਅਸੀਂ अपनी कल्चरल यूनिटी लियाना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ किस नूं पता लगेगा आंध्रा प्रदेश नूं पता लगेगा आंध्रा प्रदेश बारे पंजाब नूं पता लगेगा डन एक दूजे नाल असीं कनैक्शन बिठावांगे नहीं तो की हुंदा जा रहा है कि असीं डिफेंड हुंदे जा रहे हैं है ना मतलब कि अपने आप नूं असीं डिफेंड कर रहे हैं कि साडा स्टेट अच्छा है तुहाडे स्टेट नालों है ना इस चीज़ नूं खत्म करन लई नाम तो पता लग रहा है कि असीं एक भारत दे लोकी हां है ना अलग अलग भारत दे लोकी नहीं है असीं एक इंडिया तो आउंदे हां ना कि 2 इंडियाज तो आउंदे हां डन इस विच ध्यान च रख सकदे हो उस तो बाद समझ गए ਹੁਣ ਰੋਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਜਿਹੜੀ IPL ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ मतलब कोई केड़ी कंपनी है माफ करना अपने इंडिया की कंपनी देखो नाइक देन रीबॉक पुमा एडिडास वैसे सारी इंडिया दी नहीं है कोई तो बाहर दी भी है
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਮਾ। ਡਨ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੁਮਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 2021 ਦਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਪੁਮਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। डन, ओके, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ये प्रोग्राम। डन, इस प्रोग्राम के अधीन एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अधीन एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। वो कित्थे ऑर्गेनाइज होया? आगरा विच, अमृतसर विच, दिल्ली विच, कश्मीर विच। कोई दस सकदा मैनू कि जिहड़ा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा उसके अधीन सानू जिहड़े प्रोग्राम कराया गया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया, वो किहड़े मतलब थां ते कराया गया? यानी कि किहड़ा ऐसा टाउन है जिथे कराया गया? वो कराया गया, जे मैं गल आखां, कश्मीर च कराया गया। डन, कदों कराया सी? 29 मार्च 2021 नूं कराया सी। डन, कश्मीर वैली च कराया गया। उसदे कृषि विज्ञान केंद्र है ना, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया सी। ध्यान च रख लेना, ये जिहड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा का, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। डन, इस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अधीन। डन, जिस विच करना की सी कि जिहड़ी साडी फार्म प्रोडक्शन है उस विच वैदर का की रोल है, उसकी जानकारी जिहड़ी है फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करना। क्लाइमेट का की रोल पेगा, आने वाला टाइम बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट हुंदा जाएगा, उस दे लई खेती उपर की उसका प्रभाव पेगा, उस दे लई प्रॉपर जिहड़ा ये सैशन है कराया गया। तुसीं ध्यान च रख सकदे हो। डन, ओके, ये सैशन होया अपना कश्मीर का नॉर्थन पार्ट विच कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। डन, ओके, उस तो इलावा इस तो इलावा सर्टिफिकेट्स भी इस विच मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिहड़े बेस्ट परफॉर्म किया सी जिन्हां ने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विच, क्योंकि ये प्रोग्राम तो चल ही रहा सी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, उस दे अधीन जिन्हां ने अच्छा काम किया उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी दिते। अगला क्वेश्चन देखो, कहते किहड़ी ऐसी स्टेट है, पहली स्टेट है जिसने मतलब कोविड वैक्सीनेशन विच अपने 50 लाख बेनिफिशरी जिहड़े क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि ऐसी किहड़ी स्टेट है जिस स्टेट के लोगों ने मतलब वैक्सीनेशन लगवा ली है तो वो जिहड़ी लिमिट है वो है 50 लाख तो उपर वध चुकी है। वो किहड़ी ऐसी स्टेट है? पहली स्टेट ऐसी किहड़ी बनी जिसने कोविड वैक्सीनेशन विच मतलब 50 लाख पीपल ने मतलब वैक्सीनेशन लगवा ली है? कोई दस सकदा मैनू? महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश? कोई दस सकदा? हुण ये अपनी बनी है, जे मैं गल आखां महाराष्ट्र बनी है। कौड़ी बनी है? महाराष्ट्र बनी है। तुसीं ध्यान च रख सकते हो किहड़ी बनी है? महाराष्ट्र बनी है। डन, महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट बनी है जो मतलब 50 लाख माइलस्टोन जिहड़ी बेनिफिशरीज हैं कोविड वैक्सीनेशन के अधीन वो पूरे कर चुकी है। यानी कि इस स्टेट के घट्टो घट्ट 50 लाख बंदियां ने वैक्सीनेशन लगवा ली है। एक पहली ऐसी स्टेट बनी तां इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका सी 2020 विच। दैन उसनूं पूरा करन दा काम 2021 च प्रॉपरली शुरू होया ते असीं काफ़ी स्टेट्स नूं कवर भी कर चुके हैं। मगर जो पहली बारी कोई ऐसी स्टेट करती है ना वो इंपोर्टेंट हो जाती है। डन, ओके, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। मगर सानूं किवें पता लग गया कि इन्होंने 50 लाख बेनिफिशरी से पूरे कर चुके हैं? सानूं कोविन पोर्टल डाटा तो पता लग गया। ठीक है, जिहड़ा डाटा है इसके डिजिटल फॉर्म से जिहड़ा अपना वैबसाइट देखने को मिलती है उसको सानूं पता लग गया कि सब तो पहली स्टेट ऐसी बनी जिसने 50 लाख बेनिफिशरीज कवर कर लेने। डन, तुसीं ध्यान विच रख लेना। उस तो बाद जे आपां अगे देखिए जिहड़ा 2021 दा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ फॉर्मूला 1 जिहड़ी रेस हुई सी वो किसने जीती सी? कोई दस सकदा मैनू? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती सी, लेविस हैमिल्टन ने जीती सी, लैंडो नॉरिस ने जीती सी, सेरिगो पियर्स ने जीती सी? दस सकदा मैनू कोई? ठीक है, कोई दसो मैनू किन्हां ने जीती सी? कोई दसो? ये जीती आपां ने लेविस हैमिल्टन ने। डन, किन्ने जीती है? लेविस हैमिल्टन ने। तुसीं याद रख लेना किन्हां ने जीती है? लेविस हैमिल्टन ने। डन, ये पूछा जा सकता है। डन, ओके, ये 28 मार्च में रेस हुई सी, उस दौरान लेविस हैमिल्टन ने 2021 जिहड़ी रेस है ना फॉर्मूला 1 दी उन्होंने जीती है। डन, उस तो बाद अगे देखो, अगे आपां गल कर लैंदे हां
Who become the first श्रीलंकन to hit the 6 sixes in a over? कैसा ऐसा केड़ा फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर बनया जिसने ओवर विच 6 छक्के लगाए, समझ गए, 6 सिक्सेस लगाए, कौन बनया? वैसे तो पूरे वर्ल्ड विच काफी ऐसे क्रिकेटर्स ने, मगर आप पर्टिकुलर कंट्री की गल करिए श्रीलंका की, श्रीलंकन क्रिकेट की गल करिए तो उस पहली ऐसा प्लेयर कौन बनया श्रीलंका का जिसने 6 सिक्सेस इन ओवर च लगाए, एक ओवर विच, यानी कि 6 बॉलों 6 छक्के लगाए, केड़ा सी? थिसारा परेरा, डन। उस तो अलावा करुणानाथे, एंजिल मैथ्यूज, कुसाल मेंडिस। कोई दस सकता मैनू कौन किसने लगाए? दस सकता? जल्दी दसो मैनू। ओके, दस सकते हो तुसीं मैनू? एक मिनट होल्ड करोगे? डन, एक मिनट होल्ड करो, जस्ट अ मिनट, है ना, एक मिनट होल्ड करो, वेट। डन, माफी चाहवागा, एक मिनट होल्ड करो। माफी चाहवागा। डन, चलो हुण आपां कोशिश करते हैं, ये तुम दसो किहड़े श्रीलंका के जिहड़े प्लेयर सी जिन्हां ने ये मतलब हिस्टरी क्रिएट की है फॉर श्रीलंका क्रिकेट लई? कोई दस सकदा मैनू? ये सी अपने, दसो, ये सी अपने थिसारा परेरा साहब, ठीक है, थिसारा परेरा, ये तुसीं ध्यान च रख सकते हो। डन, एक अपना मतलब जे आप देखिए प्रॉपरली एक डोमैसटिक क्रिकेट का गल कर रहे हैं आप, एक डोमैसटिक मैच होया सी कोलंबो विच। डन, उस वक्त उन्होंने ये मतलब एक हिस्टरी क्रिएट की, ते जे आप टोटल रनस देखिए उस वक्त दे तो इन्होंने 13 बॉलों में 52 रन बनाए सी। तुसीं ध्यान च रख सकते हो, 13 बॉलों में इन्होंने 52 रन बनाए सी, तुसीं ध्यान च रखना। डन, ओके। सो अगे देखो, अगे आप गल कर लेने अपने अगले दी कि किसने सिटीज इंडिया अवार्ड्स जिहड़ा जित्तिया, केड़ी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने सिटीज इंडिया अवार्ड 2021 का जित्तिया? कोई दस सकदा मैनू किसने जित्तिया? BMTC ने जित्तिया, AICTCL ने जित्तिया, CRUT ने जित्तिया, JNNURM ने जित्तिया? मैं दस सकदा केड़ी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने सिटीज इंडिया अवार्ड्स 2021 जित्तिया? देखो ये जित्तिया अपने, जे आप गल आखिए ये जित्तिया, जे देख सकिए तो ये जित्तिया CRUT ने। डन, इसने जित्तिया CRUT ने, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। डन, CRUT ने। डन, ओके। CRUT की फुल फॉर्म की है? कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट। डन, समझ गए, कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो MO बस सर्विस ਨੂੰ मैनेज करती है, जिन्हों ने अवार्ड जित्तिया। डन, स्पैशली इन्होंने स्मार्ट ते म्यूनसिपल कारपोरेशन कैटेगरी विच मतलब इस तरह का अवार्ड जित्तिया। ये जिहड़े अवार्ड्स कराए जाते हैं ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है और ये ऑर्गेनाइज करती है। केड़ी मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, समझ गए। उस तो इलावा देख सकते हो, हाँ, उड़ीसा बेस्ड जिहड़े जनरल मैनेजर ने उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। दीप्ति महापात्रो ने भी ये जिहड़ा उड़ीसा के जिहड़े जनरल मैनेजर ने CRUT दे, उन्होंने जिहड़ा अवार्ड है वो उन्होंने रिसीव किया। यानी कि समझ पा रहे हो कि CRUT के जनरल मैनेजर कौन सन? दीप्ति महापात्रो। अगे देखो, अगे आप गल रखते हैं आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। देन ये कित्थे इनैगोरेट किया गया? केड़ी प्लेस से आपने एक तरह का सेंटर बनाया हैप्पीनेस लई, जिसका नाम रखा गया आनंदम, है ना, आनंदम जिहड़ा एक सेंटर बनाया गया है, ये कित्थे इनैगोरेट होया? IIT दिल्ली विच, IIM जम्मू विच, IIM मुंबई विच या एम्स विच? कोई दस सकदा मैनू कित्थे ऑर्गेनाइज होया? तुसीं मैनू दस सकदे हो? इसका आंसर आ जाएगा अपना, जे आप देखिए इसनों ऑर्गेनाइज कराया गया सी साडे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम दे रमेश पोखराल, हुण तां चेंज हो गए ने, मगर उन्होंने इनैगोरेट किया सी आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कित्थे? IIM जम्मू विच, तुसीं ध्यान च रख सकते हो, समझ गए। ओके, ये आनंदम है की है? ये अपना एक तरीके की अपना जी इंडियन की नॉलेज है ना, जो इंडियन की ट्रेडिशन है उस तो आपने टेक ओवर किया है। यानी कि आप चाहते हैं कि साडे इंडिया की जी कॉन्शियसनैस है नॉलेज की वो प्रॉपर तरीके ना बच्चों में आवे, है ना, बच्चे भी अपनी परसनैलिटी उस तरीके क्रिएट करन, स्टूडेंट्स के कुरिकुलम भी आप प्रॉपरली लैके आईए, इस चीज़ लिए आपने कोशिश की है। डन, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। ओके, उस तो इलावा मैंने दसो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है
ਉਹ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, WHO, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਡਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2021 ਦੀ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਡਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਵਿੱਚ, ਮਗਰ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 2021 ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? 2021 ਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ 2022 ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਡਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 2021 ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? HP ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਡਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 11 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਡਨ ਡਨ ਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ ਬਖਲੋ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਏਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਈਏ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਝ ਗਏ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੈਕਸ। ਡਨ, ਪੈਸੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ 28 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਨੇ 9th ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਇਨ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ? ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ 9th ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਨ? S. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਡਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਡਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਟਰਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਟਰਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 7th ਐਨੂਅਲ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਟ ਹੈਲਥ 2021 ਦੀ, ਨੈਟ ਹੈਲਥ 2021 ਦੀ 7th ਐਨੂਅਲ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕੌਣ ਲੈ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, S. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰੰਟਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਡਨ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਡਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਿਟ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਡਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਏਰਾ। ਡਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ,
एग्जाम वॉरियर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵॉरियर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊ ਮੰਤਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੇਲਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵॉरियर, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦੈਨ WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है या एक इंडेक्स आता, माफ करना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 का, मैं दस सकता है इस गैप इंडेक्स की रैंक कितनी रही? जे इस साल की रैंक आ चुकी है तो उसनूं ध्यान च रखते हो इनू इग्नोर करना है। जे इस साल मार्च तक जे कोई इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की 2022 की जी आई नहीं है तो तुसीं 2021 की मन के चलनी है। तुसीं ध्यान च रख लेना, मैं तुहानूं पहले ही दस रही। दसो मैनू 2021 की की रैंक सी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विच भारत की की रैंक सी? 112, 131, 140, 156। ये सी अपनी 140वीं रैंक सी। मतलब इन्ने आपां वर्स्ट हो चुके हैं कि जेंडर गैप विच असीं लगातार इनक्रीज होंदे जा रहे हैं। दैन साडे जिहड़ी नेबर कंट्रीज हैं साडे तो भी अच्छा काम कर रही ने। जे मैं बांग्लादेश कहां उन्हां दी 65 रैंक है, ठीक है, नेपाल की करा 106 रैंक है, श्रीलंका भी साडे नालों ठीक है, भूटान भी ठीक है। दैन तुसीं देख सकते हो सिर्फ पाकिस्तान साडे नालों पिछे है, दैन ते अफगानिस्तान, बाकी साडी नेबर कंट्रीज साडे नालों भी अच्छा काम कर रही ने। डन ओके। तो सब तो इक्वल जेंडर इक्विटी विच कौन निकल के सामने आया? आइसलैंड, यानी कि जिथे जेंडर गैप बहुत घट देखने मिलता है, कि जिथे इक्वैलिटी देखने मिलती है प्रॉपर, ठीक है, मर्द ते औरत विच प्रॉपर इक्वैलिटी देखने मिलती है। होर भी काफ़ी फील्ड विच कल्ला मर्द औरत की इक्वैलिटी नहीं होंदी, काफ़ी फील्ड विच जिवें पूरी देखा जाता कि किस फील्ड विच महिलावां नूं ज़्यादा जॉब्स मिलदियां या मतलब जे कहिए मैंस नूं मिलदी है, इवें देखा जाता है। डन ओके। 153 कंट्रियां चों एनालाइज किया जाता है। तो 2020 इंडिया की रैंक कितनी सी? 112वीं। तो लगातार इन्ना वड्डा जंप आया। 2021 विच इहदी रैंक हो चुकी है 140। डन ओके। उस तो अलावा अगे देखो हुण राफेल जैट्स आ रहे हैं अपने, तुहानूं पता ही है इहदा 4th बैच जिहड़ा आया वो कित्थे लैंड कीता है? पहला तो अंबाले कीता सी आई थिंक, है ना, तो मैनूं दस सकदा 4th बैच जिहड़ा 3 राफेल जैट दा वो कित्थे लैंड होया है? हरियाणा विच, गुजरात विच, डन केरला विच या महाराष्ट्र विच? जल्दी दसो। ये होया अपना गुजरात विच। डन ये कित्थे होया? गुजरात विच। तुसीं ध्यान च रख सकते हो। ये कित्थों आ रहे हैं? अपने राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस तो आ रहे हैं। डन ओके। ऑलरेडी 3 राफेल जेट्स आ चुके हैं, टोटल 14 आने ने। ध्यान च रखना टोटल 14 आने ने। पहला बैच आया जिहड़ा आया सी आई थिंक हरियाणा आया सी, है ना, हरियाणा पता नहीं अंबाले उन्हां दी जिहड़ी आ रही सी, है ना, इस स्टेट च देखने मिलदा अंबाला। डन उत्थे प्रॉपर 5 राफेल जेट आई सी। डन हुण 14 आने टोटल, उहदा जिहड़ा 4th बैच वो आ रहा है। दैन तुसीं ध्यान च रख सकते हो। तो जिहड़ा एग्रीमेंट साइन होया सी राफेल जेट्स का 2016 विच होया सी इंडिया ते फ्रांस का, कि टोटल 36 राफेल फाइटर जेट्स की गल हुई सी। डन ओके ओके। उस तो बाद वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्टेड दी इंडिया GDP ग्रोथ, यानी कि जिहड़ा अपना फाइनैंशियल ईयर है 2022 का, उस विच इंडिया की ग्रोथ कितनी रहेगी? वो मतलब वर्ल्ड बैंक ने कितनी एस्टीमेट की है? 11.9, 10.1, 9.8, 8.7? कोई दस सकदा मैनूं? इसका आंसर आ जाएगा अपना 10.1। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो, ठीक है, ओके। तुसीं ध्यान विच रख सकते। फिच ने कितने की है? फिच क्या होंगे कि फाइनैंशियल 22 वाला जिहड़ा ईयर है उसकी 12.8 रहेगी। मूडी ने कितने की है? जिहड़ी मूडी अपनी एक तरह की एजेंसी है, उन्हें 12% के है। उस अलावा क्रिजल ने कितने की है? वो की है 11%। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। अगला क्वेश्चन कि किहड़े बैंक ने मतलब 1 बिलियन जिहड़ा लोन जिहड़ा एग्रीमेंट जिहड़ा वो जापान बैंक का जिहड़ा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है उसदे नाल साइन कर लिया? मैनूं दस सकदा किस बैंक ने 1 बिलियन लोन का जिहड़ा एग्रीमेंट है वो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाल साइन कर लिया? यानी कि ये भारत का ही बैंक है जिसने 1 बिलियन लोन जिहड़ा एग्रीमेंट है वो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाल साइन इन कर लिया? कोई दस सकदा मैनूं? IDBI बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, SBI बैंक, ये सारे भारत के बैंक ने।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ SBI ਬੈਂਕ। ਡਨ। ਓਕੇ, SBI ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਕੋ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾਕੋ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਹਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਸਮਝ ਕੇ ਓਕੇ, VK ਪੌਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2016 ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ $372 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? 14,500 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, 14,500 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 5500 ਕਰੋੜ, 7500 ਕਰੋੜ, 10,500 ਕਰੋੜ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 14,500 ਕਰੋੜ। ਡਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 20,000 ਕਰੋੜ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਹਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟਿਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਮਝ ਗਏ? ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥਸ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? 10 ਜੂਨ ਤੱਕ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, 1 ਮਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਈਅਰਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ 1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ 450 ਕੁਐਸਚਨ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ 200 ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ 200 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 30 ਜੂਨ। ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਨ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਠੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਰਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਲਿੰਬਾਲੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਆਥਰ ਓਨਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਓਨਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਸਵਤੀ सम्मान ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਨੌਲੇਜ ਓਨਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਲਿੰਬਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ सरस्वती सम्मान अवार्ड मिले। समझ गए? ओके, इन्हों का पूरा नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले, जिन्होंने सरस्वती सम्मान अवार्ड मिले। किस बुक लिए मिले पूछ लिया जा सकता है? सनंतन, है ना, सनंतन, है ना, ये जी बुक है उस लिए उन्होंने मिले। समझ गए? समझ गए? सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो किहड़ा इंस्टीट्यूट लेंदा है? के बिरला। ये भी पूछा जा सकता क्वेश्चन, जो 1991 तो ये अवार्ड शुरू होए हुए हैं, तुसीं ध्यान च रखना। उस तो इलावा व्यास सम्मान जो अवार्ड मिले 2020 का प्रोफैसर शरद पगारे जी को मिले सी। उस तो इलावा उन्होंने जी नावल सी पतली पुत्रू की समरगी, है ना, उस लिए मिले सी। डन। ओके, ये भी के बिरला फाउंडेशन दिंदा जिहड़ा व्यास सम्मान है। तुसीं ध्यान च रखना, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान दोनों जिहड़े अवार्ड्स हैं वो के बिरला फाउंडेशन ही दिंदा है। उस तो इलावा हुण जिहड़ी एक बुक है अपनी 1232 किलोमीटर द लोक जर्नी होम, ये जिहड़ी बुक है इसके ऑथर कौन हैं? राहुल बग्गा साहब, विनोद कापरी साहब, विपिन गाबा, ठीक है, गाबा। उस तो इलावा अंजीत अंजुम,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ। ਡਨ। ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਰਪਰ ਕੋਲਿੰਸ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 1232 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਹੋਮ। ਡਨ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਡਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਸਾਰਾਸਾ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਾਸਾ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ 1232 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੀਹੂ, 2017 ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ? ਡਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ 4 ਪੈਕਟਸ ਤੇ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ 4 ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 4 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਡਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਸਿਪੀਐਂਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ 1889 ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਿਊ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੇ। ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਫਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊ ਫਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 11 ਫਲਾਈਟਸ, 15 ਫਲਾਈਟਸ, 22 ਫਲਾਈਟਸ, 30 ਫਲਾਈਟਸ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 22 ਫਲਾਈਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 22 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਏ ਸਨ 2017 ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਆਊਟ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੈੱਕਆਊਟ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੇਟੀਐਮ, ਪੇਪਾਲ, ਫੋਨਪੇ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੇਪਾਲ ਹੈ। ਡਨ। ਪੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ। ਡਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਓਕੇ। ਪੇਪਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ 1998 ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੈਨ ਹੌਰੀ ਨੇ, ਲੂਕ ਨੋਸਿਕ ਨੇ, ਮੈਕ ਲੈਵਚਿਨ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਥੀਲ ਨੇ, ਯੂ ਪਾਨ ਨੇ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਡਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਨੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, UNI ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਡ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? PNB ਨੇ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਇੱਕ HPCL ਦਾ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਾਰਡ ਹੈ UNI ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ UNI ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਡ। ਡਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16x ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 4% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਲ ਸਪੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4% ਤੱਕ ਜੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4% ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 500 ਤੋਂ ਅਬਵ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 600 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ, 600 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UNI ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋ ਕੋਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੀਗਾਮੈਸ਼, ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੀਗਾਮੈਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। यानी कि एक इनोवेशन की है कि एक लो कोस्ट से तुहानू इंटरनेट सर्विस मिल सकती है जिसका नाम रखा उस कंपनी ने गीगामैश। केड़ी कंपनी है वो? एक स्टार्टअप कंपनी है। एस्ट्रोमी, यूनाइटेड टेक्नो, एनवीडिया, ठीक है, वीडिया इवें कुछ नाम है, टेस्ला, केड़ी कंपनी है? ये हैगी अपनी केड़ी कंपनी है जे देखिए एस्ट्रोमी कंपनी है। डन। केड़ी कंपनी है? एस्ट्रोमी कंपनी है। डन। ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा देखने की लोड़ नहीं है। डन। ओके, चलो उस तो इलावा आगे देखो केड़ी मिनिस्ट्री ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान नाल रल के आयुर्वेदा नूं प्रमोट करने की गल की है। मैं दस सकता केड़ी मिनिस्ट्री ने कहा कि असीं कोलैबोरेट करते हैं किस नाल? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान नाल रल के आपां आयुर्वेदिया नूं प्रमोट करना चाहुंदे हां। ते केड़ी असीं मिनिस्ट्री है? रेलवे दी, शिपिंग दी, पावर दी, आयुष दी। इसका आंसर आ जाएगा अपना आयुष। डन। आयुष मिनिस्ट्री जिहड़ी है, ठीक है, उन्होंने एक आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज किया है उड़ीसा विच। उस विच उन्होंने कोलैब किया है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान नाल रल के, जिस विच उन्होंने आयुर्वेदिया प्रमोट करने की गल आखी है। समझ गए? आयुर्वेदिया पर्व जिहड़ा है उसनूं इनैगोरेट किया सी साडे पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ मोहपात्रा जी ने, जो MPV ने राज्य सभा के। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। हुण दादा साहब फाल्के अवार्ड जिहड़ा 51st दिता जा रहा है वो किन्हां नूं ऑनर किया? पिछले साल दा आपां गल कर रहे हैं क्योंकि आपां ईयरली करंट अफेयर देख रहे हैं, तो मैनूं दस सकदा है कि 51st जिहड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किन्हां नूं दिता गया? इरफान खान साहब नूं, ऋषि कपूर जी नूं, रजनीकांत जी नूं, सलमान खान जी नूं। जल्दी दसो। ये आंसर आ जाएगा रजनीकांत। डन। ओके, समझ गए? तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। इन्हां दा ओरिजिनल नेम की है, कभी पूछ लिया जाए, शिवाजी राव गायकवाड़। डन। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म च आपां रजनीकांत कहने हैं। डन। इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले। डन। तो ये जे आपां देखिए इन्हों मतलब एक अनाउंसमेंट इन्होंने की सी साडे जिहड़े एक्स मिनिस्टर सन साडे एनवायरमेंट के, प्रकाश जावड़ेकर साहब। डन। ओके, उस तो इलावा अगे देख सकते हो, है ना, एक तरह का हाईएस्ट अवार्ड है एक सिनेमा की गल करिए उस सब तो बड़ा अवार्ड किया जाता दादा साहब फाल्के अवार्ड। डन। ओके, ये नैशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान ही प्रजेंट किया जाता हरेक साल। डन। हरेक साल अलग अलग परसनैलिटी को मिलता है जिन्होंने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया होंगे। अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है। डन। जी इंडियन आर्मी है वो पार्टिसिपेट करेगी किस कंट्री की एक्सरसाइज जी शांतिर ओग्रोशेना जी कराई जा रही है? एक कंट्री की एक्सरसाइज है शांतिर, ठीक है, ओग्रोशेना, है ना, एक एक्सरसाइज करा रही है। इन्होंने चारों चो कोई ऐसी कंट्री है दैन उससे विच अपनी इंडिया आर्मी पार्टिसिपेट करेगी। मैं दस सकता है ये जी एक्सरसाइज है किस कंट्री की है? कौन ये कंट्री एक्सरसाइज करा रहे हैं? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये करा रहे हैं अपना बांग्लादेश। कौन करा रहे हैं? बांग्लादेश। समझ गए? तुसीं ध्यान च रखना, ये लगभग 4 अप्रैल तो 12 अप्रैल के दौरान एक्सरसाइज हुई सी। इसकी थीम सी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया इस विच। उस तो इलावा भूटान की आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। उस तो इलावा श्रीलंका की, बांग्लादेश की, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। डन। ओके, तो इस विच आपां ने अपने बर्थ सेंचुरी भी मनाई बांग्लादेश के जिहड़े फ्रीडम फाइटर सन सब तो वड्डे शेख मुजीबुर रहमान साहब। डन। तो उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिवें अपने उरे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान जी को कहा जाता। उन्होंने 50 साल आप उस तो इलावा जो आप देखिए 50 साल पूरे हो गए बांग्लादेश में आज़ाद होया। पहले वो आप गल आखिए ईस्ट पाकिस्तान सी। डन। उस तो इलावा अगे देखो हुण जे आप देखिए ONGC का जिहड़ा एडिशनल चार्ज है MD का ते चेयरमैन का किस नूं दिता गया? विवेक मूर्ति जी को, संजीव कुमार जी को, सुभाष कुमार जी को, अजय माथुर जी को। कोई दस सकता मैनूं? ONGC का MD तो चेयरमैन किसी ऐसी परसनैलिटी को दिता है जिसको ऑलरेडी कोई चार्ज हैगा, ऑलरेडी उसने कुछ संभालिया पे, उसको एडिशनल चार्ज आ गया। ये अपने कौन? सुभाष कुमार जी। ठीक है, सुभाष कुमार जी को ही ONGC का चेयरमैन ते MD बनाया गया। समझ गए? ओके,
ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਐਮਡੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਪਲੋਏ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀਏ। ਡਨ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਮ ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਖਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਮੀਤ ਭਾਟੀਆ। ਡਨ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਮੁਖਮੀਤ ਭਾਟੀਆ, ਸਮਝ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਏ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ। ਦੈਨ ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ NCT ਪੋਰਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਜੀ ਨੇ। ਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ NCT ਪੋਰਟਲ ਹੈ। NCT ਪੋਰਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ, ਡਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੱਪਾ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉੜੀਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉੜੀਸਾ। ਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗਜਾਪਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਫਸਟ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ? ਸਿਮਲੀਪਲ ਬਾਇਓ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ, ਦਿਊ, ਸਿਲਵਾਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਊ ਤੱਕ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਸਨ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਮਝ ਗਏ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਜੀਰਾ ਪੋਰਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਊ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੈਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ 13 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। 900 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਪੈਕ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜੀਰਾ ਤੋਂ ਘੋਗਾ ਹਨਾ, ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਪੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਡਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਫॉर ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਿਟ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਕੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ, UAE ਨੇ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ।
ਇਹ ਕਰਾਈ अपनी UAE ने। डन, किन्ने कराई है? UAE ने। तुसीं ध्यान च रख सकते हो। इस समिट होई कित्थे? आबू धाबी विच होई। साफ जी गल है, जे UAE कराएगी तो आबू धाबी च ही होएगी। इसकी थीम की सी? डिमांड, प्लैनिंग, प्रिपेयरनेस एंड ओवरकमिंग द चैलेंजेस इन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इस समिट विच आपां वैक्सीनेशन बारे गल्लां आखणीआं सी, क्योंकि आपां इम्यूनाइजेशन की गल कर रहे हैं। तो उस टाइम के साडे हैल्थ मिनिस्टर सा, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सी, डिस्कस किया सी किस तरह वैक्सीन प्रोडक्शन होर अच्छा किया जा सकता है, किस तरह एशिया पर फोकस किया जा सकता है। अगर देखो किस सिटी की जी होस्टल ने, ठीक है, IIT विंडसर अचीव किया, यानी कि जे आप देखिए किहड़ी सिटी का जो होटल है अपना, सॉरी माफ करना एक होटल है ITC विंडसर, है ना, एक किहड़ी सिटी का, ठीक है, किहड़ी सिटी का जो होटल है जिसने फर्स्ट लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन अचीव किया। यानी कि एक होटल है किसी सिटी का, इन 4 ऑप्शनों विचों उसने एक सर्टिफिकेशन हासिल किया है, फर्स्ट लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेट। कोई दस सकता मैनू? उस अवार्ड का नाम है IIT विंडसर। डन, समझ गए, है ना। तो दसो मैं सिटी किसने जो सर्टिफिकेशन है वो अचीव किया? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन्होंने 4 विचों किसी एक आप गल आखिए सिटी का, ये IIT विंडसर होटल है। इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो, समझ गए। उस तो इलावा अगे देख सकते हो, हुण कहंदे कैबिनेट ने अप्रूव करता कि PLI, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम जिहड़ी अपनी, है ना, इंसेंटिव स्कीम है जिहड़ी अपनी, उस दे अधीन आपां हुण फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री च इन्वेस्टमेंट करांगे। तां कैबिनेट ने कितनी अमाउंट जिहड़ी है फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लई कवर कीती है? कोई दस सकदा मैनूं? वैसे इस विच ना तुहानूं PLI स्कीम बारे पता होना चाहिए, ना कि इन्हां इन्वेस्टमेंट बारे। तुसीं ध्यान, कोई क्वेश्चन आ भी जावे ना इन्वेस्टमेंट बारे, स्किप करना क्वेश्चन, इन्हां चीज़ां नूं याद नहीं करना। मैमरी उन्नी उत्थे तक याद करनी जिथे लॉजिक लग सकता है। हुण इत्थे तुसीं अमाउंट का जिवें मर्जी याद कर लो, कितनी करोड़ अमाउंट याद कर लोगे, इन्हां नूं हमेशा स्किप करना है। ऐसे करंट अफेयर भी आते हैं विच जिसनूं तुसीं स्किप करना है। हुण जिवें 450 क्वेश्चन है, तुहाडे लई मोस्टली उस किन्ने इंपोर्टेंट होणगे? मोस्टली 300 इंपोर्टेंट होणगे, 300 सवा 300 इंपोर्टेंट हो, समझ गए। इस विच तुहानूं वैसे PLI स्कीम बारे पता होना चाहिए। ऐसा जिहड़ा करंट अफेयर आ जाए ना, उस विच तुहानूं PLI स्कीम बारे पता होना चाहिए। दैन मेन ये क्वेश्चन भावें आ भी जाण, 2 मार्क्स रहिंदे रह जाण, कोई चक्कर नहीं है, मगर इन्हां नूं याद करन नहीं बैठना, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन कराने का मतलब भी यही है। 10 900 करोड़, ठीक है, यानी कि 10,900 करोड़, समझ गए। PLI स्कीम नूं आपां ने 6 सालां च पूरा करना है। 2021-22 तो स्टार्ट हुई है तो 26-27 तक चलेगी, समझ गए। PLI का मतलब होंदा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। डन, जो हुण आपां ने फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लई स्टार्ट कर दी गई है। साफ समझ आ रहा है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नूं अच्छा करना चाहुंदे आ। डन, एक्सपोर्ट हब बनना चाहुंदे आ। डन, आप जे देखिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग चैंपीयन जाना चाहुंदे आ, आपां अपने इंडियन ब्रांड्स नूं आपां इंटरनेशनल मार्केट च लिआना चाहुंदे आ, जिस लई आपां ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है कि जे तुसीं तुहाडे प्रोडक्ट्स अच्छे ने, असीं तुहानूं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देवांगे, फाइनैंस सपोर्ट देवांगे, एक्सपर्टीज की सपोर्ट देवांगे। गवर्नमेंट इस स्कीम द्वारा ये कहना चाह रही है। उस जितनी अमाउंट लगती है उस हिसाब से एनालाइज करके क्राइटेरिया उस हिसाब से वो देगी। उस तो बाद अगे देखो, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करता जिहड़ा पैन नाल आपां आधार नूं लिंक करना है, उसकी जिहड़ी डेट एक्सटेंड कर दी। किन्ने डेट एक्सटेंड कर दी? कोई दस सकदा मैनूं? 31 अगस्त 2021, 30 जून 2021, 31 जुलाई 2021, 30 अप्रैल 2021। कोई दस सकदा मैनूं? यह हैगा अपना, जे आपां देखिए 30 जून तक। डन, तुसीं ध्यान विच रख सकदे हो। अगला क्वेश्चन हैगा कि जिहड़ा IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स है उसदे हुण किन्हां नूं कैप्टन बना दिता गया? कोई दस सकदा? क्योंकि अपना हुण न्यू IPL सेशन भी आ रहा है, कई बार पूछ लिया जाऊंगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन घट ही आउंदे हैं, मगर कई बार पूछ लिया जाऊंगा, कुछ नहीं पता करंट अफेयर का। इसका आंसर आ जाएगा अपना ऋषभ पंत। डन, ऋषभ पंत नूं कैप्टन बना दिता। उस तो पहले शेर अय्यर सन, हुण कौन हन? दिल्ली कैपिटल कदों फाउंड हुई सी? 2008 विच जदों IPL आया सी। डन, ओके। ते इसके न्यू कोच कौन है? रिंकी पोंटिंग साहब सन, है ना। इस ध्यान विच रख सकते हो। हुण जे आपां देखिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, है ना, उसकी थीम क्या है 2021 की? जिहड़ा अपने इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाउने आ, ICBD का जिहड़ा आपां प्रॉपर दिन मनाउने आ, उसदी इस बार दी जिहड़ी, इस बार नहीं कहांगा, 2021 की जिहड़ी थीम क्या सी? म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, हंगर फॉर वर्ड्स, वंस अपॉन अ टाइम, आई एम दी वर्ल्ड। कोई दस सकदा है? इसका आंसर आ जाएगा अपना द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। डन, ओके। ये आपां इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे जिहड़ा आपां मनाउने आ, वो हमेशा आपां 2 अप्रैल नूं मनाउने आ। ते कौन इहनूं मनाउंदा है? इंटरनेशनल बोर्ड जिहड़ा है ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल वो मनाउंदा। डन, इस बार दी थीम की सी कि अपनी म्यूजिक ऑफ वर्ड्स की गल कीती है, समझ गए। ते 2020 की थीम की सी? हंगर फॉर वर्ड्स। डन, ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकदे हो। डन,
ओके केड़ी ऐसी पहला नेशन है जिसने मतलब एक तरीके नाल हिस्ट्री क्रिएट की है, जिसने एनिमल्सली वैक्सीन बनाती, कोविड-19 की एनिमल्सली वैक्सीन बनाती? केड़ी ऐसी पहली स्टेट है, सॉरी स्टेट कहूँगा, पहला ऐसा नेशन है जो ने रजिस्टर्ड किया कि असी हुण अपने एनिमल्स लिए भी कोविड-19 वैक्सीन लेके आ रहे हैं? 2021 की गल कर रहा मैं, अप्रैल की। यूएसए, रशिया? ये क्वेश्चन 100% नैब च पूछा जा सकता, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, जो पहली बार हो रहा होंगे वो तो आता है। इसका आंसर आ जाएगा अपना रशिया। डन, रशिया, ठीक है, समझ गए? डन, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का नाम की रखा स्पुतनिक वी। डन, उन्होंने इस चीज़ का नाम रखा। उस तो इलावा किहड़े क्रिकेटर, सॉरी मैं गलत बोल गया और नहीं, ठीक है एनिमल्स, नहीं ठीक है चलो। उस तो इलावा जी आप देखिए डिजिटल इंश्योरेंस के किन्होंने ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, यानी कि वो एक क्रिकेटर ने उन्होंने ब्रांड एंबेसडर बनाता किस दा, डिजिटल इंश्योरेंस का। कोई दस सकता कौन हैं? विराट कोहली साहब हैं, के राहुल साहब, रोहित शर्मा जी, ऋषभ पंत जी। मैं जी वैसे ही लगा रहा है, मगर तुसीं चलो इस चीज़ इग्नोर करना, दस सकता कोई मैनू? ये है अपने विराट कोहली जी, ठीक है, ओके समझ गए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है साडे, इन्हां दा कॉन्ट्रीब्यूशन साडे इंडियन क्रिकेट टीम च पिछले 10 सालों बहुत अगे गए है। जे आप देखिए MS धोनी तो बाद अच्छा ट्रांजिशन होया सी। वैसे ही मैं थोड़ा क्रिकेटरी नॉलेज दे रहा सी, वैसे ना टाइम वेस्ट नहीं करना अपने। चलो उस तो बाद बाकी चीज़ां कोई ज़्यादा याद रखने की लोड़ नहीं है। दैन एक बार दस देना, न्यू ग्रोथ जी कंपनी है उसके ब्रांड एंबेसडर साडे हैं अजिंक्य रहाणे जी। उस अलावा ग्लैन मार्क जी अपनी फार्मा की जी कंपनी है उसके ब्रांड एंबेसडर हैं रोहित शर्मा जी, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। डन, ओके। उस तो इलावा अगे देखो किहड़ी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है जो हरेक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, यानी कि ऐसी पहली स्टेट जो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जो ये कह रही है कि असी हरेक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करांगे। किहड़ी? केरला की, गुजरात की, राजस्थान की, तमिलनाडु की। जो कोई भी चीज़ पहली बारी हो रही होंगी है वो इंपोर्टेंट हो ही जाती है। ये होएगी अपनी किहड़ी? राजस्थान। डन, केरला कह गया मैं, राजस्थान। तुसीं ध्यान में रख सकते हो, समझ गए? तो 5 लाख का क्लेम मिल सकता है कि हरेक फैमिली को मैडिकल एक्सपेंसिस लिए, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। मतलब अपना जो स्टेट से कंपैरिजन करिए तो राजस्थान पहले स्टेट बनती है, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। तो उस स्कीम का नाम की है, प्रॉपरली स्कीम हेल्थ स्कीम का चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस दे अधीन ही इस तरह की बेनिफिट जिहड़ा राजस्थान के जिहड़े हाउस होल्ड्स जिहड़े ने, फैमिली जिहड़ी उन्होंने मिलेगा। डन, उन्होंने जिहड़े रेजिडेंट्स ने। उस तो इलावा सेंटर ने अनाउंस किया है कि BR अंबेडकर जी के बर्थडे के दिन पब्लिक हॉलीडे होएगी, है ना? तो उन्होंने बर्थडे कदों आउंदा है, कोई दस सकता मैनू? वैसे मेरा बड़ा फेवरेट दिन है, मगर तुम मैं दस सकते हो कि वो दिन मेरे लिए बहुत फेवरेट है। चलो आप टाइम वेस्ट नहीं करना, ये होएगा अपना 14 अप्रैल। डन, ओके 14 अप्रैल, क्योंकि मैंने पता ही है। चलो उस तो इलावा इन्हों का पूरा नाम की है, कभी पूछ लिया भी जाता, परसनैलिटी डेवलपमेंट लिए तुम्हें पता होना चाहिए। भीम राव राम जी, भीम राव तक पता होंगे कई बार बच्चों को, राम जी नहीं पता होंगे। डन, राम जी अंबेडकर साहब, क्योंकि इस 4 ऑप्शन दे देंगे, कई बार पूछ लिया भी जाता कुछ नहीं पता। तो इस साल आप 130वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे, जिमें आप अपने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं अपना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की, 1000 अपनी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं आप 2022 आप रामानुजन जी की, है ना? उन्होंने आप 1000 साल पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने स्टैचू भी आ रहा है चाइना की कंपनी तो बन के, फैबरिक च लगेगा, तुहानू पता होना चाहिए। डन, उस तो इलावा अगर देखो पहला ऐसा रेलवे जोन जो फुली इलैक्ट्रीफाइड हो चुका है, रेलवे जोन बन चुका है, यानी कि फुली इलैक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है। ऐसा केड़ा रेलवे जोन है? अपने भारत च काफी रेलवे जोन देखने को मिलते हैं ना, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, है ना, नॉर्थर्न जोन। तो मैं दस सकता केड़ा ऐसा जोन है जो फुली इलैक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है? ये होएगा अपना वैसटर्न सेंट्रल जोन। है ना, वैसटर्न सेंट्रल जोन जिहड़ा वो फुली केड़ा बन चुका है? इलैक्ट्रीफाइड जोन बन चुका है। डन, ओके, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। उसके हैडक्वार्टर कित्थे ने? जबलपुर मध्य प्रदेश विच ने, समझ गए? जबलपुर मध्य प्रदेश ने। डन, तो इंडिया का टारगेट भी यही है कि 2023 तक सारे रेल नैटवर्क्स जिहड़े ने वो फुली इलैक्ट्रीफाइड हो जाने चाहिए ने, तो ये प्रॉपरली रन करेंगे 2030 तक। ये भी कहता उन्होंने 2030 तक सारे रेल नैटवर्क्स रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ये रन करेंगे। तुसीं ध्यान में रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, मेन क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता। डन, ओके। या ये पूछ लेंगे वैसटर्न सेंट्रल जोन के हैडक्वार्टर कित्थे ने, नॉर्थर्न जोन के हैडक्वार्टर कित्थे ने। क्वेश्चन ना घुमा के इंडायरैक्ट पूछे देने, सीधा सीधा नहीं याद कर लेना। 2-3 उदियां मतलब मैप माइंड्स बनाया करो, प्रॉपर माइंड मैप, माफ करना। उस तो इलावा देखो किन्हां नूं आपां ने लैफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट करता
ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਕਪੂਰ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1947 ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 30+ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਨ। ਐਵਰੇਜ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੇਜ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਡਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੰਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਥੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਥੀਕਲ ਵੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਡਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PSB ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਨੈਨਾ ਲਾਲ ਕਿਡਵਾਈ, ਕਲਪਨਾ ਮੋਰਪਾਰੀਆ, ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ MD ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦਾ? ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2nd ਐਸੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਡਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਡਨ। ਕਰੰਟ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਡਨ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ 1892 ਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਨ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੁਪਾਰੀ ਪਲਨਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਦੇ ਆਥਰ ਹਨ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਾ ਜੋਸ਼ੀ। ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸੁਪਾਰੀ ਪਲਨਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲਨਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਡਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅੰਨਾ ਵਰਪੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ GST ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ GST ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2017 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ GST, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 1,23,900 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, 1,23,900 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਨ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ PCS 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2020 ਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2018 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया जेंडर इक्वैलिटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ UN ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ UN ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ $1.5 ਲੱਖ $5 ਲੱਖ $2 ਲੱਖ $3 ਲੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ABCD ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ABCD ਡਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ $3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ $3 ਲੱਖ ਡਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ UN ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2011 ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ UN ਵੂਮਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੂਸ਼ੂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੂਸ਼ੂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਕੇਰਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੇਰਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਨ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਡਨ 17 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਅਨ ਮਿਥੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਐਸੀ ਵੂਸ਼ੂ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਨ ਸਾਊਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ 2023 ਦਾ FIFA ਵੂਮਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੋਥ 1 and 2 ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੋਥ 1 and ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ 9 ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 1991 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੋਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਨ ਅੰਬੋਲੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਿੰਧੂਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਨ ਓਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਫਿਸ਼ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰੇਅਰ ਕਲਰਫੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਨ ਓਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਰਾ ਹਿਰਨਕਿਸ਼ੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਹਿਰਨਕਿਸ਼ੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅੰਬੋਲੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਨ ਇੱਕ ਐਡਵਰਡ ਹੈਗਰ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PM ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਾਰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਡਨ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਨ ਓਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਤਿਸਲਾਵਾ ਡਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਵਲ ਕਮਾਂਡ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੋਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਵਲ ਕਮਾਂਡ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਵਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਡਨ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਨ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਜੁਆਇੰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੋਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ नहीं सेकंड है माफ करना सेकंड ऐसा अपना लॉजिस्टिक नोड है जो आप एस्टैबलिश कर रहे हैं फस्ट पहला जो नोड एस्टैबलिश होया सी वो 2018 में अंडमान निकोबार में होया सी डन साढ़े एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जोड़े ने वो सन अपने बिपिन रावत जी जो मतलब क्रैश मतलब फाइटर क्रैश उन्होंने तरीके नाल डेथ हो गई उन्होंने डन उस तो इलावा किहड़ी कंट्री ने
प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 रिपोर्ट विच टॉप किया। एक रिपोर्ट आउंदी है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम है ना, उस रिपोर्ट विच किहड़ी कंट्री ने टॉप किया? चाइना ने, इंडिया ने, कैनेडा ने, फ्रांस ने? कोई दस सकदा मैनूं किन्हां ने मतलब टॉप किया? वो किया आपां ने इंडिया ने। डन, इंडिया ने टॉप किया। समझ के ये प्राइम टाइम रियल टाइम रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? ASI वर्ल्ड वाइड। डन, जिस विच इंडिया टॉप ते रहा। समझ रहे? ओके, इसका मतलब की है कि जी डिजिटल पेमेंट जी ट्रांजैक्शंस हुई हैं मोस्टली जी ट्रांजैक्शंस हुई हैं लगभग 25.5 बिलियन, उस विच इंडिया सब तो मतलब 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस इंडिया विच हुई हैं। दैन इस करके सब तो उपर नंबर ते रहा। चाइना सैकेंड पोजीशन ते रहा, साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन ते रहा। डन, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। समझ गए? ASI वर्ल्ड वाइड जी है एक पेमेंट सिस्टम कंपनी है जिसके हैडकुआटर फ्लोरिडा विच ने। बाकी इन्होंने याद करने की लोड़ नहीं। उस तो अलावा अगे देखो किहड़े स्टेट के गवर्नर ने बीबी हरिचंदन है ना, उन्होंने जे देखिए कलिंगा रत्न अवार्ड जीते हैं। किहड़ा अवार्ड जीते हैं? कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 का जीते हैं। किहड़े स्टेट के गवर्नर ने? हरिचंदन। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेंगे कलिंगा रत्न अवार्ड किन्ने जीते हैं? बीबी हरिचंदन ने। डन, ये है अपने किहड़ी स्टेट के ने? ये अपने है आंध्र प्रदेश के। तुसीं ध्यान रख सकते हो आंध्र प्रदेश के ने। डन, ओके, सो तुसीं ध्यान रखना है। डन, बाकी कुछ ज़्यादा इनू प्रेजेंट किया सी वाइस प्रेजिडेंट वेंकैया नायडू जी ने अवार्ड नूं। डन, कदों? जदों आपां अपना 4th एनुअल डे मना रहे सी सरला साहित्य संसद जो कटक उड़ीसा विच होया सी सरला भवन ते। डन, उस वक्त असीं अवार्ड दे रहे सन। तां सब तो 2017 विच जे आपां देखिए कलिंगा रत्न अवार्ड करवाया गया इस संसद वालों। डन, एनुअली अवार्ड करा रहे हैं उदों दी। डन, ते तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। डन, उस अलावा किस कंट्री ने 2023 मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जी है होस्ट करेगी? यानी कि किहड़ी कंट्री है जी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की होल्ड करेगी? होल्ड मतलब होस्ट करेगी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान? जल्दी दसो। ये करेगी अपनी उज्बेकिस्तान। तुसीं ध्यान रख सकते हो उज्बेकिस्तान करेगी। डन, ओके, बाकी कुछ ज़्यादा याद करना नहीं है। इनू ऑर्गेनाइज कौन कराउंदा है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन। डन, ओरिजिनली जी है इसकी पार्टनर है। डन, इसके हैडकुआटर कितने ने? लोसेम स्विट्जरलैंड च ने। ठीक है, एबा के हैडकुआटर कितने ने? लोसेम स्विट्जरलैंड च ने। इसके क्वेश्चन पूछ ले जाऊंगे। डन, ओके। डन, सो तुसीं ध्यान च रखना। तो उस तो अलावा एक चीज़ हो याद रखना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन के प्रेजिडेंट कौन ने? उमर करमलेव। डन, ओके, उन्होंने अनाउंसमेंट की सी कि इस बार की जी 2023 की जी बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद विच होनी है। डन, उस तो अलावा अगे देखो हूँ बाला साहब ठाकरे नैशनल मैमोरीयल के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया दादर विच। ठीक है, दादर वाली जगह ते एक बाला साहब नूं याद करदे होया एक नैशनल मैमोरीयल बनेगा उन्हां दा। उहदी जिहड़ी फाउंडेशन स्टोन है यानी कि नींह पत्थर है वो कौन रख रहा है? नरेंद्र मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, सोनिया गांधी जी? जल्दी दसो कौन रख रहे हैं? ये रख रहे हैं अपने, दसो, ये अपने रख रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। तुसीं ध्यान रखना दादर की गल हो रही है तो साहब की गल है महाराष्ट्र की गल ही हो रही होगी। डन, ओके, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। बाकी कुछ याद करने की लोड़ नहीं है ज़्यादा। डन, तो ये बस जगह पूछ लिया जाएगी शिवाजी पार्क विच। ठीक है, तुसीं ध्यान में रखना। दादर जिहड़ा पहला ऐसा प्लैंड एरिया है मुंबई का, तुसीं ध्यान रख सकते हो। डन, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। डन, उन्होंने आपां बाल केशव ठाकरे के नाम नाल भी जाणदे हैं। ठीक है, बाला साहब ठाकरे उन्होंने आपां बाल केशव ठाकरे के नाम नाल भी जाणदे हैं। डन, समझ गए? तुसीं ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जो फाउंडर सन शिवसेना के उन्होंने याद करते हुए अपने बाला साहब ठाकरे नैशनल मैमोरीयल बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा केड़ी IIT है जो पहली ऐसी IIT बनी जिसने कार्बन फुटप्रिंट 50% तक रिड्यूस करता? कार्बन फुटप्रिंट 50% तक रिड्यूस करता। IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर? हुण तक दसो तुहाडे किन्ने क्वेश्चन ठीक हुए हैं? जे 40+ चल रहा है, ठीक है, स्कोर तो अच्छी गल। इसका आंसर आ जाएगा अपना IIT दिल्ली। तुसीं ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये तुसीं ध्यान में रखना। IIT दिल्ली कित्थे लोकेटेड है? साउथ दिल्ली। ठीक है, तो कदों एस्टैबलिश हुआ सी? 1961। बाकी इन्ना याद करने की लोड़ नहीं। दैन UN एस्केप का एक प्रोजैक्ट किया है कि इंडिया की जी GDP रहेगी फाइनैशियल ईयर 2022 की वो 7% रहेगी, 10.1% रहेगी, 11% रहेगी या 12% रहेगी? ये तुसीं मैनूं दसना। ये रहेगी अपनी जे आप देखिए 7% रहेगी। कितनी परसेंट रहेगी? 7% देखने को मिलेगी। डन,
UNESCAP की है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तुसीं ध्यान च रख सकते हो। उन्होंने कहा है कि जिहड़ा अपना 2021-22 का फाइनैशियल ईयर है ना, उसकी जिहड़ी GDP रहेगी वो रहेगी 7%। हुण आ जानी है मार्च तो अप्रैल मार्च तो बाद रिपोर्ट आ जाएगी इन्हां दी डन प्रॉपरली डन। वर्ल्ड बैंक ने कितनी की मैं तुहानूं दस चुका, ये चीज़ां तुहानूं मैं पहले ही दस चुका, टाइम वेस्ट नहीं करना डन। उस तो इलावा किहड़ा ऐसा बैंक है जो पहला ऐसा बैंक बन चुका है जो फोन पे नाल पार्टनर रहेगा ते फास्टैग जिहड़े ने इशू करेगा? किहड़ा ऐसा बैंक है? यस बैंक, देना बैंक, HDFC, ICICI माफ करना ICICI नहीं ICICI है ना, ICICI है ना, ये आएगा अपना यही बैंक है ना, फोर्थ बैंक डन। ओके, पहला ऐसा बैंक बन चुका है जो फास्टैग इशू करेगा डन। ICICI बैंक की फुल फॉर्म की है, कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि एक्साइज पेपर च नहीं थी योग की फुल फॉर्म पूछ ली गई कि नेशनल इंस्टीट्यूशन होएगा इंस्टीट्यूट होएगा, तुसीं मैनूं दसो नेशनल इंस्टीट्यूट होएगा या इंस्टीट्यूशन होएगा, नहीं तो योग की फुल फॉर्म पूछी गई थी डन। ओके, कई बार मैं घुमा देंगे ना क्वेश्चन, प्रैशर विच ना स्टूडेंट प्रैशर विच कई बार गलत भी कर दिंदा। इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम ध्यान देख लो, बैंक का नाम की है प्रॉपर इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1994 लिया सी, हैडकुआटर मुंबई विच है। पहली बार बैंक लिया सामने वडोदरा गुजरात विच, मगर फिलहाल इसके हैडकुआटर मुंबई विच है। उस तो इलावा किहड़ा ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जो बिलियन ट्रांजैक्शन मार्क विच आ चुकी है UPI की, यानी कि आप UPI ट्रांजैक्शन देखिए उस विच बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। किहड़ी ऐसी पहली डिजिटल पेमेंट कंपनी है? भीम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये होगी अपनी फोन पे डन, जिसदियां 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं डन। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। फोन पे इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी एक तरीके की डन, जो दिसंबर 2015 विच आई सी सामने, हैडकुआटर इत्थे बेंगलुरु कर्नाटका विच ने, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो डन। किहड़ी मिनिस्ट्री ने अप्रूव करता है कि हुण असीं नैशनल पॉलिसी लियाण जा रहे हैं रेयर डिसीज़ लई, कुछ ऐसी रेयर डिसीज़ हैं उस लई हुण गवर्नमेंट हैल्प करेगी, उन्होंने कुछ फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उहदे लई किहड़ी मिनिस्ट्री ने ये जिहड़ी पॉलिसी है उसनूं अप्रूवल दे दित्ती है 2021 दी? हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री। इसका आंसर आ जाएगा अपना हेल्थ मिनिस्ट्री डन। किहड़ी मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री। तुसीं ध्यान च रख सकते हो डन। ये काम की करेगी जिहड़ी साडी रेयर डिसीज़ ना, बहुत जिहड़ियां बीमारियां ऐसियां जो बहुत घट देखने को मिलदियां मगर लोकां च प्रभावित करदियां, उहदे लई पैसा बहुत खर्चा जाउंदा, क्योंकि साफ जी गल है कोई प्रोडक्ट महंगा इस करके क्योंकि उसकी प्रोडक्शन घट है। जे गवर्नमेंट पैसा पा दे तो वह प्रोडक्ट उन्ना सस्ता हो जाता, जिवें LED बल्ब। इस तरीके नाल बीमारी है, बीमारियां दे लई खर्चा बहुत हुंदा है, वो जो खर्चे च गवर्नमेंट हैल्प कर दे तो उसकी कॉस्ट घट जाएगी, नहीं घट जाएगी ना। उस तो इलावा यह भी होएगा कि असीं डोमैस्टिक रिसर्च करिए कि किस तरह इन्हां रेयर डिसीज़ नूं तो प्रिवेंशन हो सकती है डन। ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। उस तो इलावा इन्हां नूं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ध्यान नाल पढ़ लो, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का चेयरमैन बना दिता है मोहम्मद आमिर नूं, ठीक है, उर्जित मोहम्मद उमर नूं, है ना, उर्जित पटेल नूं, अदिल जैनुल भाई नूं डन, अमिताभ घोष नूं। दस सकदा कोई? इसका आंसर आ जाएगा अदिल जी नूं, ठीक है, अदिल जी नूं। पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं डन। हुण इन्हां नूं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का प्रॉपरली तरीके नाल चेयरमैन बना दिता है डन। इसका काम की होएगा, जिहड़ा साडा मिशन कर्मयोगी है जिस विच आपां अपने सिविल सर्वेंट्स नूं IAS ऑफिसर नूं ट्रेन करना है, उहदे लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया कि किस तरह इन्हां नूं आउण वाली मतलब मॉडर्न स्थिति विच किस तरह इन्हां नूं एक तरीके नाल इंटीग्रेट किया जा सके, कि इन्हां नूं किस तरह आउण वाले मतलब चैलेंजिस लई अडैप्ट किया जा सके, उसके लिए एक कमीशन तैयार किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। उसके लिए इन्होंने चेयरमैन बनाया डन। क्वेश्चन पता की पूछ लेंगे? क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन किस मिशन का पार्ट है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन किस मिशन का पार्ट है? मिशन कर्मयोगी कुछ इवें पूछ लेंगे, तुसीं कंफ्यूज हो जाओगे। तुसीं कहा यार मेरे करंट अफेयर च मैं तो भुल गया, मतलब पता ही नहीं, मैं तुहाने पढ़िया ही नहीं, तुहाने ये चीज़ां पढ़ लियां, बस ये चीज़ पढ़िया करो मेन डन। ओके, उस तो इलावा वर्ल्ड बैंक ते AIIB, ठीक है, मैं दस सकता AIIB की फुल फॉर्म क्या है? उन्होंने एक लोन प्रोवाइड करता 300 मिलियन का डन, कादे लई? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लई। वो प्रोजेक्ट कित्थे लगन जा रहा है जिसदे लई उन्होंने $300 मिलियन का प्रोजेक्ट जिहड़ा अप्रूवल देती, लोन की अप्रूवल देती। ये जिहड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है कित्थे लगन जा रहा है? महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका। इसका आंसर आ जाएगा अपना पंजाब डन। ये पंजाब च लगन जा रहा है, खुशी की गल है ना। ये ज़्यादातर जे आप देखिए ज़्यादातर अमृतसर लुधियाना पानी की घाट होंदी जा रही है, तो उसनूं पूरा करने लई है ना
यानी कि पानी की ये भी क्या है कि पानी की लॉसेस भी घट होवे, उसके लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। डन, हुण तुहानूं पता लग चुका होएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तुसीं ध्यान च रखना। डन, समझ गए। इस विच अद्धा पैसा पाया जाएगा, 105 मिलियन AI भी पाएगा, 105 मिलियन अपना वर्ल्ड बैंक पाएगा, समझ गए। तो पंजाब जिहड़ा 90 मिलियन पाएगा, उसकी भी कोलैबोरेशन रहेगी। उस तो इलावा एक बुक है नीली महारानी, है ना, यानी कि नीली महारानी यानी कि मतलब हो गया माई मदर माई हीरो। इसनों अच्युता समांता ने इसनों ऑथर किया, यानी कि इस बुक लिखी है। उसनों रिलीज किन्ने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वेंकैया नायडू जी ने, पीयूष गोयल जी ने। जल्दी दसो, इसका आंसर आ जाएगा अपना वेंकैया नायडू जी ने। डन, ज़्यादातर वेंकैया नायडू जी करते हैं। डन, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। ये डॉक्टर जिहड़े ने साडे जिन्हां दी बुक है अच्युता समांता जी, ये लोक सभा दे मैंबर ने, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी जी अपनी लेट मदर जी इन्होंने नीली महारानी जी ने, जिन्हों की बुक का नाम देखोगे ना नीली महारानी, ये उन्होंने मदर ने, उन्होंने बारे लिखे जा चुके हैं, उन्होंने बारे उन्होंने प्रॉपरली ध्यान च लिया सामने। डन, तो ये भी ध्यान रखना अच्युता जी जोड़े ने लोक सभा मैंबर तो ने, उस तो इलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, जी भुवनेश्वर में है, उसके फाउंडर भी ने, जो 1992 स्टार्ट की गई थी। ध्यान च रख लेना, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाऊंगा। अगर देखोगे एक मनोहर पारिकर की जी बुक सी ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, यानी कि उन्होंने नहीं लिखी, वो जा चुके हैं, उन्होंने बारे दसिया उन्होंने ऑथर किन्ने किया बुक नूं, जिस विच उन्होंने मनोहर पारिकर बारे दसिया कि उन्होंने एक्सीलेंस किवें सी, वो सोच रहे थिंकिंग किवें सी। डन, अनुरुद्धि रॉय जी ने लिखा, जीत थैल ने लिखा, नितिन गोखले ने लिखा, अंदिया दत्ता जी ने लिखा। कोई दस सकता मैनूं? जल्दी दसो। ये है अपने कौन है? अपने नितिन गोखले जी। डन, ओके, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। इसनूं 31 मार्च 2021 रिलीज किया गया। पब्लिशर कौन सा इन्हां दे? ब्लूम्सबरी। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो यह पूछ लिया जाता है कि किन्हां दे रिटर्न है? नितिन गोखले। डन, ओके, जिस विच उन्होंने मनोहर पारिकर की जर्नी बारे दस्से, जदों दे अपने चीफ मिनिस्टर रहे हैं उस वक्त का भी दस्या उन्होंने। डन, ये पहले ऐसे IIT पर्सन था जो चीफ मिनिस्टर बने। उस तो इलावा अरविंद केजरीवाल जी बने, है ना, वो तो बाद फिर IAS बने। IAS तो नहीं कहूँगा, उन्होंने रेवन्यू सर्विसिज में सन, मतलब कि तैयारी तो IAS की करनी पैंदी है, भावें रेवन्यू सर्विस चले जाओ। डन, गवर्नमेंट ने कहा कि असं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप एक्सटेंड करन जा रहे हैं, कोविड करके मतलब इस पॉलिसी में आप होर एक्सटेंड करन जा रहे हैं। जी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ले आई सी, उन्होंने एक्सटेंड करन जा रहे हैं। कितनी डेट तक? 31 मई 2021 तक, 31 दिसंबर तक, 31 अक्तूबर तक, 31 सितंबर तक। दसो मैनू, कोई दस सकता मैनू? वैसे इस तरह के क्वेश्चन में जैसे इग्नोर भी करना चाहो ना, कुछ क्वेश्चन तुहानूं नाल दी नाल दसने, तुहानूं नॉलेज भी दे रहे हैं कि कितना क्वेश्चन इग्नोर करना। डन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बारे पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन भावें आवे ना आवे, ठीक है, मैं तुहानूं साफ कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आवे ना आवे, जे आ भी जाए स्किप कर देना। भाई सानूं नहीं पता यार कद हो रहा सी, सानूं इन्ना पता होना चाहिए, मेन लॉजिक पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहली बार कदों आई सी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन ले आया सी? निर्मला सीतारमण जी ले आए सी। एक क्वेश्चन बनता है कदों आई सी? 2015 दी आई सी। साफ जी गल खत्म। किहदे लई आई सी? कि असीं गुड्स ते सर्विस नूं एक्सपोर्ट करना है, गुड्स ते सर्विस नूं एक्सपोर्ट करना है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है। डन, ओके, इसलिए आई सी। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये वैल्यू रखता क्वेश्चन ये नहीं वैल्यू रखेगा ज्यादा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो करंट अफेयर आप बैकएंड तो याद रखना, उसकी स्टोरी याद रखनी, करंट की चल रहा है उन्होंने नहीं याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ भी जाए, किन्नी चीज़ां याद रख लोगे यार, नहीं याद रख सकते, ठीक है। मैं थोड़ा जिहा मैं ढिला पा रहा, मैं तुहानूं समझाउण लई कह रहा तुहानूं मैं। डन, उस तो बाद देखोगे किस कंट्री ने H1B वीज़ा जिहड़ा उन्होंने जिहड़ी बैन है उन्होंने एंड करता, ठीक है। विच कंट्री हैज़ एंडेड द बैन ऑन H1B वीज़ा। हुण H11 जिहड़ा वीज़ा जिहड़े हुंदे सन उन्हां उपर बैन लगाया होया सी, हुण उसनूं एंड करता किस कंट्री ने कीता? चाइना ने, रशिया ने, USA ने, ब्रिटेन ने। हिसाब जी गल है USA ने कीता, ठीक है, समझ गए। ओके, पहले फॉर्मल प्रेजिडेंट जिहड़े सन उन्होंने कहा सी, उन्होंने नॉन इमिग्रेंट के उपर बैन लगाता सी। डन, ओके, जिहड़े H1 वीज़ा के अधीन आउंदे ने, मगर उसनूं द्वारा जोन बाइडन जी आ गए ने, तो उन्होंने इसनूं मतलब लिबरल विचार दे ने, इन्होंने बिल्कुल ही उन्होंने खत्म करता। तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। उस तो इलावा एक 5 डे तुलिप फैसटिवल होया, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होया? तुलिप फैसटिवल, ये पूछ लिया जाएगा। हाँ, फैसटिवल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाऊंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यह होएगा अपना जम्मू कश्मीर में। डन, ओके, एशिया का लार्जेस्ट तुलिप गार्डन सानू जम्मू कश्मीर श्रीनगर देखने को मिलता है। डन, ते उस श्रीनगर दे विच जिहड़ा ये तुलिप गार्डन है, उत्थे तुलिप फैसटिवल 5 दिनों का मनाया जाऊंगा। डन, ये तुसीं ध्यान च रखना है, मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए है। डन, इस तुलिप गार्डन नूं आपां इंदिरा गांधी मैमोरियल तुलिप गार्डन भी कहने हैं। डन, तुसीं ध्यान च रखना। ओके, के क्वेश्चन
देन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो टूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर के किस मतलब टाउन च देखने मिलता है? श्रीनगर। साफ जी गल है। इंडिया दा फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट किहड़ा है? पीएम कुसुम स्कीम के अधीन कित्थे देखने मिलेगा? फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट राजस्थान, माफ करना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। जल्दी दसो। आई थिंक 100 क्वेश्चन ही होंगे अज, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना। राजस्थान होगा, ठीक है, राजस्थान तुम ध्यान च रख सकते हो। राजस्थान ने देखा ना हुण तक पीएम कुसुम स्कीम के सारे टारगेट कंप्लीट कर लिया। ये भी तुम याद रखना जे तुम मेरे करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, आप जो पेड कोर्सेस आप तैयारी कर रहे हैं उस देखो जाके आप पढ़ चुके हैं राजस्थान बारे कि राजस्थान पहले ऐसी स्टेट बन चुकी है जी पीएम कुसुम स्कीम बहुत अच्छा काम कर चुकी है। टारगेट पहले 1-2 साल पहले कंप्लीट कर लिया उन्होंने। पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म की है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। डन। जो कि मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल सोर्सेस। ये मेन ईयर पूछ लेंगे वो। डन। फुल फॉर्म नहीं पूछते अजकल, ईयर पूछ लेंगे, इन्ना बड़ा नहीं पूछते होंगे वैसे, ईयर पूछ लेंगे ने। डन। ओके, समझ गए, तुम ध्यान में रख सकते हो। डन। अगे देखो, वर्ल्ड बैंक ने $32 मिलियन जोड़ा दा प्रोजेक्ट जोड़ा अप्रूव करता कि कादे लई? हैल्थ केयर सर्विसिस अच्छी करने लई। किस स्टेट की गल कर रहे हैं जिस सानू हैल्थ केयर सर्विसिस अच्छी करनी है? सिक्किम दी, असम दी, मिजोरम दी, मेघालय दी। जल्दी दसो मैनू। इसका आंसर आ जाएगा अपना मिजोरम। डन। ओके, मिजोरम दी। डन। तुम ध्यान में रख सकते हो। मिजोरम के हैल्थ सिस्टम को अच्छा करने लिए प्रोजेक्ट लिया गया। डन। तो वर्ल्ड बैंक कदों फाउंड होया सी? वर्ल्ड बैंक फाउंड होया सी 1944। इसके हैडक्वार्टर कितने ने? वाशिंगटन डीसी विच ने। डन। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका काम है लोन्स प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट लिए काम करना। डन। ओके। हु विल बी ऑनर्ड विद द 30th GD बिरला अवार्ड? साइंटिफिक रिसर्च लिए एक GD बिरला अवार्ड मिलता है। 30वां अवार्ड किसनूं मिले? मुकेश श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम राव नूं, आशुतोष चंद्रा नूं, सुमन चक्रबोर्टी नूं। कोई दस सकदा मैनूं? ये मिले अपने सुमन चक्रबोर्टी नूं। तुसीं ध्यान में रख सकते हो, सुमन चक्रबोर्टी नूं ये जिहड़ा अवार्ड मिले, तुसीं ध्यान में रख सकते हो क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया है। ऑलरेडी ये फैकल्टी मैंबर ने IIT खड़गपुर के, वैस्ट बंगाल की जी IIT है। उस तो इलावा इन्होंने कैश प्राइज भी मिले 5 लाख का। डन। ये जी GD बिरला अवार्ड है ये पहली बार 1991 सामने आई सी। के बिरला फाउंडेशन कराउंदा है, तुहानूं पता है। मैं तुहानूं व्यास सम्मान बारे भी दस चुका, सरस्वती सम्मान बारे भी दस चुका। हुण एक नवां याद कर लो, GD बिरला अवार्ड। डन। ओके, समझ गए। ये आप अवार्ड एक तरीके नाल घनश्याम दास बिरला जी ऑनर करके ही आप अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होंदा उन्होंने दिंदे आ। आप याद करते घनश्याम जी उन्होंने याद करते हुए अलग अलग अवार्ड्स अलग अलग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होंदा उन्होंने आप दिंदे आ। उस तो इलावा किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हुण सारे जर्नलिस्ट ऑल एजिस के लिए आप कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जर्नलिस्ट लिए सोच रहा कोई गवर्नमेंट, ये अच्छी गल है। तो करंट अफेयर न्यूज़ भी बन सकती है। मैं दस सकता उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल। कहते केड़ी ऐसी स्टेट है जो कोविड वैक्सीनेशन सारे जर्नलिस्ट स्टार्ट करने जा रही है फॉर ऑल एजिस? इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। डन। ओके। उन्होंने जिहड़े तीरथ सिंह रावत सन, डन, ये चेंज होंदे रहंदे, तुसीं देख लेना। डन। तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। डन। उस तो इलावा देखो एक नित्य योग का प्रोग्राम सी। डन। जिस विच आपां डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते सन। हुण नित्य योग का एक प्रोग्राम है जिसका मोटो ये है कि वो डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप को मतलब सपोर्ट करना चाहते सन। डन। तो वो प्रोग्राम का नाम की है? एम प्रिंस, एम साइंस, एम हाई, एम मास्टर। कोई दस सकता मैनूं? उस प्रोग्राम का नाम की है? उसका प्रोग्राम का नाम है एम प्राइम। डन। एम प्राइम तुसीं ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, एक इनिशिएटिव है जिस विच असीं कोशिश करांगे कि ट्रेनिंग की गाइडेंस दईए डीप टैक्नोलॉजी नूं लैके, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप नूं लैके अगले 12 साल। एम प्राइम की फुल फॉर्म की है? अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रीडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डन। घबराओ ना, ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे थोड़े तो, भूल जाओ, बस ये पूछ लेंगे एम प्राइम कौन लैके आया। डन। संकल्प से सिद्धि। डन। एक विलेज से डिजिटल ड्राइव है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? संकल्प से सिद्धि एक डिजिटल ड्राइव स्टार्ट किया गया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सिविल एविएशन ने, ट्राइबल अफेयर्स ने, आयुष ने, पंचायती राज ने। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट है ना। अगे देखो ये ट्राइबल अफेयर्स हैं। ठीक है। ओके। संकल्प से सिद्धि विच आपां अपनी डिजिटल कनैक्टिविटी नूं वधाउणा चाहुंदे हां, उहदे लई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये ट्राइफेड के अधीन स्टार्ट होया। ट्राइफेड किसका पार्ट है? इस मिनिस्ट्री का पार्ट है। संकल्प से सिद्धि विच 100 दिनों का ड्राइव होएगा जो 1 अप्रैल 2021 तो स्टार्ट होया सी
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਡਨ, ਤੇ 100 ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਤਾ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 693.94 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ? ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 693.94 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਉੜੀਸਾ। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 693 करोड़ किने दिता, पूछ लिया जाएगा कालिया स्कीम किस स्टेट दी है। क्वेश्चन है सीधा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया जाएगा कालिया स्कीम, ठीक है, जी कालिया स्कीम है ये किस दी है। डन। ओके, उत्थे जेडे सीएम ने नवीन पटनायक उन्होंने जी स्कीम लॉन्च की सी, तो कालिया स्कीम पहली बार जी एक फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है फार्मर्स लिए, ठीक है, ये फार्मर्स लिए लियाउंदी गई सी 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਪੂਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਐਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਲਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ CEO ਤੇ MD ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਚਾਡਾ, ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਲਮ ਸਾਵਨੀ, है ना। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ LT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ CEO ਤੇ MD। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ LT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਰਸਨ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਰਸਨ ਟੂਬਰੋ LT ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡੋਦਰਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆਪਣੀ LT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਡਨ। 2009 ਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MD ਤੇ CEO ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੋਥ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਡੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੋਥ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? $157 ਮਿਲੀਅਨ, 147, 137, 130? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ $137 ਮਿਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? $137 ਮਿਲੀਅਨ, ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ। ਡੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, 1970 ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੋਥ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ। ਡਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਨ ਕਰ ਲਿਆ 1169.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ 'ਚ? 1169.1 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੋ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ, ਜੋ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਜੁਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਈਸ਼ੂ ਗੁਹਾ, ਲੀਸਾ ਸਥਲੇਕਰ, ਚੰਦਰਾ ਨਾਇਡੂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੰਦਰਾ ਨਾਇਡੂ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1977 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਵੂਮਨ ਬਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ
ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते सन किस कॉलेज विच, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इंदौर विच। डन। ते पहली कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम दी। डन। यानी कि माफ करना मैं गलत बोल रहा, एक साडे कर्नल सन कोटारी कनकिया नायडू है ना, उन्हां दी बेटी है चंद्रा नायडू जिहड़ी है वो इन्हां दी बेटी है, जो अपने इंडियन टीम के कैप्टन सन, फस्ट कैप्टन जिहड़े सन वो ये सन। डन। कभी पूछ लिया जाए अपने इंडिया क्रिकेट टीम के फस्ट कैप्टन कौन सन, कर्नल कोटारी जी सन। उन्हां दी बेटी है चंद्रा नायडू, जो फस्ट फीमेल क्रिकेटर भी बनी, ठीक, उस तो इलावा कमेंटेटर भी बनी। डन। कमेंटेटर 1977 बनी। 2-3 क्वेश्चन हो गए तुहाडे। उस तो इलावा इंडिया का फस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर जा चुका है, मैं दस सकदा उसका नाम की है। इंडिया का फस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर जा चुके हैं, उन्होंने नाम की है, कमलनाथ जी, भजन लाल, दिग्विजय जाला, इवें कुछ नाम है, नीलामानी रुत्रे। इसका आंसर आ जाएगा अपना दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय डेन। ओके। ते पहले ऐसे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर सन ते MLA सन, जो गुजरात तो सन, तुसीं ध्यान च रखना। 88 की उम्र च इन्हां दी डेथ हो गई। डन। ते उस तो इलावा PM इंदिरा गांधी जी की मतलब उन्होंने अधीन सानू इन्हां दी मिनिस्ट्री अधीन ही सानू कैबिनेट के अधीन ही है, पहले ऐसे एनवायरमेंट मिनिस्टर बने 82 तो 84 के दौरान। डन। ओके। ते एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नू बाद विच इन्होंने 2014 में चेंज करता, उसका नाम बदल के रखता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डन। फिलहाल ये भी चेंज हो चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर साहब आई थिंक नहीं है, तुसीं देख लेना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम कदों चेंज होया, तो उसनूं किस नाम नाल जानते हैं। इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन सन, यह भी पूछा जा सकता है कि जिहड़े फस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर सन दिग्विजय जी वो किस स्टेट के सन, यह भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर तो किस ईयर तक सन। सो क्वेश्चन ये ध्यान रखना। डन। संजय चक्रवर्ती वो जा चुके हैं। डन। वो इंडियन कोच सन किस स्पोर्ट के, संजय चक्रवर्ती जा चुके हैं, वो इंडियन कोच सन किस स्पोर्ट के, फुटबॉल, क्रिकेट, शूटिंग, हॉकी। दसो। ये सन अपने शूटिंग दे, तुसीं ध्यान च रख सकते हो, शूटिंग दे सन। प्रॉपरली आप देखिए इंडियन कोच सन। डन। तुसीं ध्यान में रखना। डन। इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। डन। ओके। इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। उस अलावा इन्होंने दादाजी कोंडदेव अवार्ड भी मिल चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट वालों, दादोजी कोंडदेव है ना अवार्ड मिल चुका है। उस अलावा ओलंपिक मैडलिस्ट देखिए आप गगन नारंग है ना, उन्होंने भी इन्होंने सामने लिया। उस तो इलावा अंजलि भागवत जी ने भी अगे प्रजेंट किया, यानी कि इन्हों की कोचिंग विच गगन नारंग जी ओलंपिक मैडलिस्ट रहे सन। उस तो इलावा अंजलि भागवत जी भी ओलंपिक मैडलिस्ट रहे सन, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। 104 फीट हाई फ्लैग मस्त इनैगोरेट किया गया किस सिटी विच, दिसपुर, गंगटोक, इंफॉल, कोलकाता। 104 फीट हाई फ्लैग मस्त। डन। ये किया गया गंगटोक विच, ध्यान च रखना। डन। गंगटोक विच भी महात्मा गांधी मार्ग के एरिए विच भी सानू देखने को मिलेगा इस तरह का फ्लैग। डन। ओके। इसनूं सैटअप किया रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम ने। डन। एक तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर होएगा, नैशनल फ्लैग नाल रिलेटेड होएगा प्रॉपर। तो गंगटोक जिहड़ी है कैपिटल है सिक्किम की, तुहानूं पता ही होना चाहिए। उस तो इलावा विच स्टेट ने, किहड़ी स्टेट ऐसी है जिसने यूनीक गिफ्ट स्कीम लॉन्च की है, कादे लई, कोविड-19 वैक्सीनेशन लई। कोविड-19 जिहड़ी वैक्सीनेशन है, ठीक है, टीकाकरण लई उन्होंने एक यूनीक गिफ्ट स्कीम लॉन्च की है। ये यूनीक गिफ्ट स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसने, उत्तर प्रदेश ने, तुसीं ध्यान में रख सकते हो। डन। उन्होंने ये यूनीक गिफ्ट स्कीम लॉन्च की है, समझ गए, तुसीं ध्यान च रखना। तो यह भी ध्यान च रखना एक किस दौरान की, वर्ल्ड हैल्थ डे जो असीं मना रहे थे 7 अप्रैल, उस दौरान की, समझ गए। ओके। इस विच उन्होंने नाम तो समझ आ रहा है कि उन्होंने गिफ्ट मिलणगे जिहड़े वैक्सीनेशन कराणगे, जो कोविड-19 वैक्सीन लैणगे उन्होंने कुछ लकी ड्रा मतलब गिफ्ट मिलणगे, तुसीं ध्यान च रखना, समझ गए, कि जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लीती है एलिजिबल होणगे गिफ्ट लैण लई, यानी इस स्कीम के अधीन। यानी कि आप एक तरीके नाल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमोट करना चाहते सन। तो इस क्वेश्चन की बनेगा कि वर्ल्ड हैल्थ डे कदों मनाओगे, 7 अप्रैल। डन। उस तो इलावा BCCI एंटी करप्शन यूनिट के इस टाइम के हैड कौन हैं, शब्बीर हुसैन, शेख रहमान, अजीत सिंह, रमेश मूडी। ये हैं अपने शब्बीर हुसैन, तुसीं ध्यान च रख सकते हो। डन। ये फॉर्मर DGP भी रह चुके हैं, हुण इस टाइम के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन हैं। डन। तुसीं ध्यान च रखना। ओके। उस तो इलावा देखिए इन्होंने
बस इन्ना को याद रख लो, ज़्यादा याद रखने की लोड़ नहीं। उस तो इलावा इन टैनिस विच मियामी ओपन टाइटल मैन सिंगल विच किसने जितया? मैन सिंगल कैटेगरी विच मियामी ओपन टाइटल किसने जितया? होबर्ट, हुरकाजा ने, जैनिक ने, राफेल ने, नडाल ने, रोजर फेडरर ने। दसो किन्होंने जितया? ये जितया अपन ने होबर्ट हुबर्ट जी ने। ठीक है, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। किन्होंने डिफीट किया? इन्होंने जैनिक सिनर नूं। डन। ओके, इटली के जैनिक सिनर नूं डिफीट करके ये इन्होंने मियामी ओपन टाइटल जित लिया। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि टाइटल किन्ने जितया, क्वेश्चन ये बनेगा ਜਿਹੜੇ हुबर्ट जी हैं ये किस कंट्री के हैं? पोलैंड के हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है। डन। एक बिगेस्ट टाइटल है इन्हों के करियर का। डन। ओके, पहले ऐसे पोलैंड के मतलब फर्स्ट मास्टर बन चुके हैं जिन्होंने को 1000 चैंपीयन मतलब रिसिप्ट किए हैं, इन्होंने रिसीव किए हैं। डन। तो वूमन सिंगल च कौन जिते? अश्लीक भारती जिते हैं। डन। ओके, तुसीं ध्यान च रखना इन्होंने बियांका एंड्रूस्को नूं हराया तो वूमनस कैटेगरी विच अश्लीक जी जिते हैं। डन। उस तो इलावा किहड़ी ऐसी अपनी थर्ड स्टेट बन चुकी है जो फोर्थ जी कन्वर्शन है मैरिज की उसनूं लैके लो पास करता? काफ़ी धामां देख रहे हैं कि जिहड़ा धर्म परिवर्तन नूं लैके कुछ कानून सामने ले आ रहे हैं, हरेक कितने ना कितने स्टेट ले आ रही है। ये जिहड़ी इन्हां चारां चों ऐसी थर्ड स्टेट बन चुकी है जो इसलिए कानून ले आ चुकी है। केरला, पंजाब, बिहार, गुजरात। इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। डन। ओके, पहले सब तो पहले उत्तर प्रदेश लियाई सी इस स्कीम, पर लव जिहाद का मामला नहीं हुंदा। उस आधार पर जिवें रिलीजियस कन्वर्जेशन हुंदी है, जिवें एक नूं धर्म तो उन्होंने जिवें हिंदू तो मुस्लिम बनाता, मुस्लिम तो हिंदू बनाता। डन। ये कितने ना कितने गलत हो रहा है, जिवें इस तरह के फोर्स कन्वर्जेशन मैरिज लिए मतलब इन्हों के जिहड़े रूल्स हैं वो गलत हैं। डन। ओके, तो तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। उस तो इलावा अगे देखो इंडिया ने टॉप किया किस विच? दुबई पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 विच, यानी कि जिहड़ा ये बैडमिंटन कॉम्पीटिशन होया सी 2021 का दुबई का पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल वाला, उस सब तो ज़्यादा मैडल इंडिया ने जिते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पूछा, उन्हें ये पूछा कि इंडिया ने कितने मैडल जिते हैं? 10, 20, 30, 40। जल्दी दसो। ये जिते ने अपने 20, तुसीं ध्यान च रखना 20 जिते हैं। डन। ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। डन। 4 गोल्ड ने, 6 सिल्वर ने, 10 ब्रोंज ने। डन। ओके, तो जी साड़ी वर्ल्ड चैंपीयन है प्रमोद भगत जी, उन्होंने 2 गोल्ड जिते। कृष्णा नगर ने तो प्रेम कुमार ने 2 गोल्ड जिते। तुहानूं नाम पता होना चाहिए 2 गोल्ड किन्ने जिते। डन। क्वेश्चन ये नहीं पूछणगे, क्वेश्चन ये पूछणगे जिहड़ा पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का होया सी, वो कित्थे होया सी? दुबई विच होया सी। डन। हुण किस इंडियन सोल्जर ने गिनीज बुक रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच अपना नाम दर्ज किया? अपने इंडिया का कोई सोल्जर है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच अपना नाम दर्ज किया है? नायक वेलू ने, विष्णु सोम ने, मनीष कुमार ने, उमा सुधीर ने। इसका आंसर आ जाएगा अपना नायक वेलू ने। तुसीं ध्यान च रखना नायक वेलू जिहड़े आर्मी सोल्जर ने। डन। उन्होंने जे देखिए एक अल्ट्रा मैराथन की सी कश्मीर तो कन्याकुमारी की, जिसके करके उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने लगभग 4300 की जी रेंज मतलब जर्नी है मैराथन की, अल्ट्रा मैराथन की 50 दिन कंप्लीट कर ली। लगभग और डेली 70 तो 100 किलोमीटर दौड़ते सन। रेस सी, एक रेस तो नहीं कहूँगा, एक तरह की मैराथन सी, जिवें आपां मैराथन कर रहे हैं ना करंट अफेयर की, इस तरीके की मैराथन सी। एक दिन च घट्टो घट्ट 100 किलोमीटर तुरते सन ते उन्होंने 4300 किलोमीटर का सफर तय किया भज के। डन। तो कश्मीर तो स्टार्ट किया कन्याकुमारी तक गए, तो उस करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्हों का नाम आ गया। डन। इन्हों का एक मैसेज सी जाते हुए कश्मीर तो कन्याकुमारी कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये उन्होंने ताकि असं यूथ में इंस्पायर कर सकीए तो उन्होंने फिट रख सकीए। फिट मिशन में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करने की गल आखी सी। डन। समझ गए। उस तो इलावा इन्होंने 2020 भी एक मतलब पहले ऐसे अल्ट्रा रनर बने जिन्होंने 17 दिनों में 1600 किलोमीटर की मैराथन भी पूरी की। डन। पहले इसका रिकॉर्ड से उन्हें दूजा रिकॉर्ड हो गया, 2 रिकॉर्ड हो गए। डन। उस तो इलावा किस स्टेट की जी है 7 साल की कुड़ी ने जे देखिए जिसका नाम है दृष्टि जायसवाल, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? केरला की, गुजरात की, तमिलनाडु की, तेलंगाना की। इसका आंसर आ जाएगा अपना गुजरात की। डन। समझ गए। ओके, ध्यान च रखना। डन। इन्हों का रिकॉर्ड की सी जे आप देखिए प्रॉपर इन्हों का रिकॉर्ड सी कि मतलब इन्होंने आई थिंक 2 मिनट समझ नहीं आ रहा कि क्या इन्होंने, चलो छड्डो फिर तुहानूं मैं इस विच दसांगा। डन।
forwarding 64 times in 1 minute, 60 world record by forwarding 64 times। इस ਵਿੱਚ थोड़ा क्लीयर नहीं है, चलो इसके बारे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कमेंट सैक्शन दस दाँगा। डन ओके, मैनू क्लीयर नहीं हो रहा है। डन चलो छड्डो, अगे देखो आपां तुसीं चिंता ना करना, इसके बारे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कमेंट सैक्शन जरूर दस दाँगा। किस स्टेट ने हाईएस्ट मनी कलैक्ट की है फ्रॉम स्मॉल सेविंग स्कीम? एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, उस किस स्टेट ने हाईएस्ट अमाउंट जी मनी की वो कलैक्ट की है? यानी कि इसका मतलब की हो गया, उस स्टेट है जिहड़े लोग ने इस स्मॉल सेविंग स्कीम अपना मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब डिपोजिट करा रहे हैं, वो हैगी अपनी खुद वेस्ट बंगाल की। डन ओके, वेस्ट बंगाल तो सैकंड पोजीशन पर रहे अपने उत्तर प्रदेश, तो सब तो ज़्यादा पैसा जो आया स्मॉल सेविंग स्कीम तो 5.96 लाख करोड़ आया। डन उस अलावा अगे देखो, अपने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड जो अपना 2021 स्पोर्ट एसेस विच किन्नू मिलिया? सचिन तेंदुलकर नूं, जी.आर. विश्वनाथन नूं, MC मैरी कॉम नूं, PV संधू नूं। इसदा आंसर आ जाएगा अपना मैरी कॉम नूं। डन ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकदे हो। डन ओके, चलो उस तो अलावा अपना लास्ट क्वेश्चन अज दा। डन ते एक बुक है जिसका नाम है हिंदुइज्म बियॉन्ड रिचुअलिज्म। ठीक है, कि रिचुअलिज्म तो बियॉन्ड भी अपना हिंदुइज्म देखने को मिलता है, उसके बारे उन्होंने थोड़ा विचार प्रकट किए हैं इन्होंने राइटर ने। और राइटर का नाम की है रामचंद्र गुहा जी, विनीत अग्रवाल जी, अनंत विजय जी, रोमिला थापर जी। इसका आंसर आ जाएगा अपना विनीत अग्रवाल जी। डन ओके, एक IPS ऑफिसर ने IIT की हुई है इन्होंने। डन तो ये लैके आई सी बुक। डन जिस उन्होंने डिफाइन किया कि हिंदुइज्म आप सिंपल तो इंटरस्टिंग मैनर किमें देख सकते हैं, आप एक डिफाइन करने की कोशिश की है। डन ओके, चलो उस तो अलावा हुण आपां 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। डन 100 चो तुसीं मैनूं दसो तुहाडे 70 प्लस हैं, जे है तो अच्छी गल है। डन 60 प्लस भी है तो भी अच्छी गल है, इसका मतलब तुहाडे पिछले साल के करंट अफेयर पढ़े हुए हैं। डन ये फिर कह दवा नैब की मार्च 2020 का जो एग्जाम है, माफ करना 2022 का जो एग्जाम है, उसके 20 मार्च में जो एग्जाम होना है उसके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।